Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371 7106 and 2371 7117. But do not forget to prefix 011 if you are calling from out of Delhi. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, मनोज पाठक। नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह हम हाजिर हैं अर्थनीति, कारोबार और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजा खबरों को लेकर। आज सोमवार है और सोमवार के दिन हम आपको आमंत्रित करते हैं अपने कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। आज भी आप पूछ सकते हैं हमसे अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे सवाल पूछने के लिए डायल कीजिए 2331-4444, 23717106 या फिर 23717117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक मामलों की विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं निशित कुमार। Sensex and the Nifty slipped more than 1.5% amid profit booking and resurgence of COVID-19 cases in the country. RBI's bi-monthly monetary policy review begins today, and oil prices fall more than 2.5% amid rising supply from OPEC plus countries. देश में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने के बीच घरेलू शेयर बाजार में आज मुनाफा वसूली तेज। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 1.5% से अधिक लुढ़के। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक समीक्षा बैठक आज से शुरू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ओपेक सहित अन्य तेल निर्यातक देशों द्वारा उत्पादन बढ़ाए जाने के बीच कच्चे तेल के मूल्यों में 2.5% से अधिक की गिरावट हुई। The Sensex and the Nifty today fell more than 1.5% in afternoon trade amid resurgence of COVID-19 cases in the country. Investors remain cautious and book profit amid lack of global market cues due to extended holidays after Good Friday. The Sensex at the Bombay Stock Exchange finished below 49,500 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange settled below 14,700 levels. The Sensex declined 871 points or 1.74% to end at 49,159. And the Nifty at the National Stock Exchange also slipped 230 points or 1.54% to close at 14,638. The mid-cap and the small-cap and the BSE performed better than the Sensex. The mid-cap index fell 1.13%, while the BSE small-cap index slipped 1.08%. And in the Sensex pack, shares of 25 companies logged losses, while 5 gained. HCL was the top gainer as it climbed 3.1%, followed by TCS, which rose 2.3%. On the other side, Bajaj Finance tumbled 5.8% and the IndusInd Bank plunged 5.6%. SBI fell 4.6% and Mahindra & Mahindra slipped 4.2%. And in the sectoral indices, 14 out of 19 sectors declined. IT sector stocks was the top gainer as it ended 2% up, followed by tech, which rose by 1.7%. On the other hand, realty declined 3.6%, BankX fell 3.5%, while finance ended 3.3% down. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,903 companies fell, while 966 appreciated. Shares of 190 companies remained unchanged. घरेलू शेयर बाजार पर हम हिंदी में जानकारी आपको बाद में देंगे। श्रोता काफी संख्या में हमसे जुड़ चुके हैं, इसलिए सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं अपने श्रोताओं को। दिल्ली से हमारे साथ आ चुके हैं सतीश। सतीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मैं मैडम से सवाल करना चाहता हूँ। मैडम, जैसे हम भारत के लोग बागे हमारे सभी घरों में ना सोने की, गोल्ड की खरीदारी होती है। इस पे मैडम मैंने एक विदेशी चैनल की मैंने वीडियो देखी है, उसमें ना ये बताया गया कि जैसे हम लोग ना भारत के लोग गोल्ड तो खरीदते हैं, लेकिन हमारे को ना गोल्ड की खरीदने की और बेचने की ना उसकी बेसिक नॉलेज भी नहीं है। जैसे हम लोग जब सतीश जी अपना सवाल पूछें।
सर मैं सवाल ही पूछूंगा, पहले मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। सतीश जी, आपके सवाल जब कभी हुआ करते हैं तो उनका जो कह लें कि मुख्य सवाल बहुत छोटा सा होता है और कहानी लंबी होती है। अपना सवाल सीधा पूछना आप शुरू करें। नहीं पाएंगे आप सर, जैसे सोना हम खरीदने जाते हैं, सुना कितने पैसे कमा रहा है, खरीदते वक्त हमें ये पता नहीं चलता। बेचने जाते हैं कितने पैसे कमा रहा है, हमें नहीं पता चलता। हमें ये पता है कि भाई 10 ग्राम, 1 तोला में 10 ग्राम होता है, लेकिन 1 ग्राम में कितने मासे होते हैं इसकी जानकारी नहीं है। सुनार जब 1 ग्राम सोने का कोई आभूषण बनाता है तो उसमें कितने मासे कट जाते हैं और उसकी कितनी कमाई होती है, तो इसकी भी जानकारी नहीं है। तो मैडम क्या वजह है कि हम लोगों को इतनी कम नॉलेज है सोने की, जबकि ये हमारा ट्रेडिशन है सोना खरीदने की, फिर भी हम जानकारी से वंचित है। सतीश जी, इसका जवाब मैं ही देता हूं। हर खरीदार को अपने जो कुछ खरीदना है उसके बारे में अच्छी जानकारी रखनी चाहिए। जब हम आलू प्याज खरीदने जाते हैं तो 1 किलोग्राम में कितना आलू होता है जब हम पहले से पता कर लेते हैं, तो सोना भी खरीदने जब कभी आप जाया कीजिए तो पूरी जानकारी जुटा लीजिए, उसके बाद खरीदेंगे तो मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं शेयर बाजार की ओर। कारोबारी सप्ताह के पहले सत्र में आज घरेलू शेयर बाजार में मुनाफा वसूली तेज रही है। देश में कोविड मरीजों की संख्या में वृद्धि के बीच दोपहर कारोबार में निवेशकों की चौतरफा बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग 1.5% से अधिक नीचे लुढ़क गए। गुड फ्राइडे अवकाश के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कोई खास संकेत निवेशकों को नहीं मिला। ऐसी स्थिति में निवेशकों के बीच सावधानी की धारणा बनी रही और मुनाफा वसूली की गई। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 871 अंक यानी 1.74% घटकर 49,159 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 230 अंक यानी 1.54% नुकसान के साथ 14,638 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजारों की ओर चले तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में आज बेहतर रहा है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.13% घाटे में रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.08% की गिरावट हुई। नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम मुंबई, हसमुख जी, वेलकम टू द शो। अपना सवाल पूछें। या गुड इवनिंग सर, नमस्ते। गुड इवनिंग सर, माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इनविट, INVIT, जैसे REIT is there in the market. So is there any InvIT possible available now for the investors? और अगर नहीं है तो कभी आ रहा है और कैसे क्या इन्वेस्टमेंट करना है, क्या हमें सोच के कैसे प्लान करना है उसके बारे में बताइए। जी, इनका सवाल पूरी तरीके से क्लियर नहीं था, अगर आप रिपीट कर सकें। कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन वंस अगेन? इट इज नॉट वेरी क्लियर। लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट चुका है। हम आमंत्रित करना चाहेंगे दिल्ली से अनिल आहूजा जी को। अनिल आहूजा जी, सवाल पूछें, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार मार्केट तंत्र। मेरा एक बल्कि 2 सवाल है जी। छोटे। एक सवाल तो यह है, जो जब हमारी मार्केट इतनी ऊपर चढ़ती है फिर एकदम से वोलाटाइल हो गए, एकदम से धड़ाम करके जैसे आज गिरी, तो कोविड केसेस तो पीरियडिकली बढ़ ही रहे हैं, बट इसका इतना इम्पैक्ट इकॉनमी अगर स्ट्रांग है तो क्यों पड़ा? दूसरा ये जो ये शेयर प्राइसेस है, जैसे आप बोलते हैं ना कोई कंपनी का नाम नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, तो मेरा सजेशन है कि कोई ऐसा प्रोग्राम भी बनाओ जिसमें हम कंपनी का नाम लेके उनकी डिटेल्स आपके थ्रू पता कर सके, क्योंकि हमारे जॉब में होता है तो ज्यादा डिटेल हमारे पास होती नहीं। तो वाइल गोइंग ऑफिस एंड कमिंग होम तो वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस। थैंक यू। जी, आपका पहला सवाल, जब भी मार्केट्स की जो मूवमेंट है वो ओवरऑल ट्रेडिंग पे डिपेंड करती है कि कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है किसी भी स्टॉक की, या ओवरऑल मार्केट्स में क्या सब डिमांड या सप्लाई है। जहां तक देखा जाए कि मार्केट्स ने एक हायर पॉइंट इसलिए रीच किया था क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी में एक शार्प जो है टर्न देखा गया था, जिसके अंदर देखा गया कि जो तीसरे क्वार्टर से है वो हम टेक्निकली रिसेशन से बाहर हो गए, और जो इकोनॉमिक रिकवरी पोजीशन है वो हमारे नेक्स्ट ईयर जीडीपी की ग्रोथ रेट 11.5% पे मानी जा रही है। तो और ओवरऑल जीएसटी कलेक्शंस और ऑटोमोबाइल सेल्स को देख करके एक पॉजिटिव आउटलुक है। पीएमआई भी एक ऐसे इंडिकेटर है जो एक पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है। पर क्योंकि कोविड के केसेस वैक्सीनेशन के आने के बाद
काफी ज्यादा रिसर्च किए हैं और ये जो सेकेंड वेव आई है उसकी वजह से जो इकोनॉमिक रिकवरी है उसके ऊपर प्रेशर पड़ा है और उसे वो वापस जो है फोर्स कर रही है लॉकडाउन की तरफ और पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस की तरफ, जिसकी वजह से मार्केट्स ने रिएक्ट किया है और आप ये एक डाउनफॉल देख सकते हैं। इसका ये भी कारण है क्योंकि एक अवकाश के बाद खुली है तो मार्केट्स में जो वॉलेटिलिटी थी वो कहीं ज्यादा थी और प्रॉफिट बुकिंग टेक प्लेस की है और थोड़े इन्वेस्टर्स कॉशियस रहे हैं। Yeah, and talking of taking this question a bit further, Yamini, the increasing COVID cases all over has once again been rearing its ugly head. The market seems to be in the proverbial once bitten twice shy mode, with wild fluctuations seen alternately. However, despite all the glum picture, the markets seem to be more resilient and mature this time. How do you see this development, which of course is a big plus for all of us? Well, I think, the overall environment in the economy is very positive. People have taken the mass vaccination program with a lot of pride and they are getting their vaccinations through. But what has happened is there is a relaxed mode which has also started with the vaccination, whereby we need to heed to the advice of the Prime Minister which says, Dawai bhi aur kadhai bhi, and whereby one needs to take safety precautions as well as take medications also or the vaccination also in place. Given the case rises which are there, I think the special teams which the government is now planning to put with respect to ensuring more safety and more precautions as well as to ensure more vaccination in this month is likely to further help cope up with the COVID situation. The numbers are in positive direction, whether it is GST collections, automobile sales, petrol and diesel demand, your PMI index. Inflation is under control, but the surge in the COVID cases remains to be one of the key concerns. दिल्ली से आमंत्रित करना चाहेंगे अब हम शैलेश सक्सेना जी को। शैलेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि कार्वी का डीमैट अकाउंट था मेरा जी, वो बंद हो गया है, तो मेरी होल्डिंग है उसमें, तो मैं किस तरीके से उसे निकाल सकता हूँ वहां से? जी, आप उनके कस्टमर केयर उसके ऊपर कॉल करिए और उनको या लेटर लिखिए कि आप अपने डीमैट अकाउंट के जो बैलेंस है उसको वापस लेना चाहते हैं और वो आपको उसको रिफंड करेंगे। अगर वो नहीं सुनते हैं तो आप स्टॉक एक्सचेंजेस को भी लिख सकते हैं, जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में था, NSE या BSE, और अगर वो भी नहीं सुनते हैं तो आप SEBI में लिख सकते हैं। हम खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शेयर बाजार के बारे में हिंदी श्रोताओं को जानकारी दे दें कि घरेलू शेयर बाजार में आज मुनाफा वसूली तेज रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 871 अंक नीचे आया, 49,159 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 230 अंक नीचे लुढ़का। छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर रहा। यहां यामिनी जी, हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि शेयर बाजार में जो वर्तमान स्तर है उसमें क्या निवेशकों की ओर से मुनाफा वसूली हमें देखने को मिल रही है और उनका रुझान कहीं दूसरे तरफ तो नहीं जा रहा? जी देखिए, एक तो बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज की हैं यूएस के अंदर और यूएस का डेटा भी इम्प्रूव किया है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। ओवरऑल जो है अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स यूएस मार्केट्स की तरफ रुख करते हुए दिख रहे हैं, पर ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं और जो डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं उनके लिए एक बेस्ट पोर्टफोलियो के अंदर इंडिया एक बहुत अच्छी मार्केट है और जो इसकी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो काफी स्ट्रांग हैं, जिसके तहत माना जा रहा है क्योंकि एक हाई लेवल पर है, प्रॉफिट बुकिंग टेक प्लेस कर रही है, जिससे देखा जाएगा कि लोग तब खरीदेंगे जब मार्केट थोड़ी सी डाउन हो जाती है और फिर वापस उसको वेट करेंगे कि वो ऊपर जाएं। पर ओवरऑल क्योंकि मार्केट्स हायर हाइट पर हैं जो एक्सपेक्टेड नहीं रहती, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग ज्यादातर देखी जा रही है। Talking of rupee, the rupee at the foreign exchange market today appreciated marginally by 2 paise to 73 rupees and 30 paise against the US dollar. The dollar index, which indicates the US dollar strength against a basket of 6 other leading currencies, fell 0.06% to 92.96. It seems we have reconnected to Hasmukh from Mumbai. Hasmukh, once again, welcome to show.
अपना सवाल पूछिए। या आई थिंक नाउ माय वॉइस इज क्लियर सर। हाँ जी, आपकी आवाज बिल्कुल साफ है, सवाल पूछिए। या माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनवीट, जैसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है REIT, उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में बजट के अंदर बताया गया था। मेरा क्वेश्चन ये है कि इज देयर एनी इनवीट नाउ लिस्टेड और इन नियर फ्यूचर गोइंग टू बी लिस्टेड प्लीज। जी, क्या चीज लिस्ट है? IEI इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इज टू बी लिस्टेड, इज दैट व्हाट इज योर क्वेश्चन? या जिस तरह से REIT का लिस्टिंग हुआ था और इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में लास्ट बजट में बताया गया था। जी, अभी ये कहना मुश्किल है कि वो लिस्ट होगा या नहीं होगा, पर पॉसिबिलिटी है कि ओवरऑल लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए उन्हें भी जो है लिस्टिंग परमिट की जा सकती है, पर अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिख रहा है। मुंबई से ही आमंत्रित हम करना चाहेंगे रत्नाकर जी को। रत्नाकर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सवाल पूछें। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग सर। जी, स्वागत। हाँ, मेरा सवाल है कि अभी मार्केट 800 पॉइंट निचले स्तर पर आया है, तो न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए ये लेवल कैसा लगता है? तो दूसरा सवाल है कि जो अभी 20-21 फाइनेंशियल ईयर में मेरा कुछ प्रॉफिट हो गया था शॉर्ट टर्म गेन, तो वो 26 AS में इनकम टैक्स में दिखेगा कि मुझे वो अलग से इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय दिखाना पड़ेगा? जी, आपका STT जो है जमा होता है, उससे TDS नहीं कटता। आपको अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को आइडेंटिफाई करना होगा और वहां पे पेमेंट करनी होगी टैक्सेस के लिए। जो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है, अपनी इनकम कंप्यूट करते समय आप उसे कंप्यूट करके फिर उसे पे करें। तो 26 AS में उसमें TDS नहीं कटता। जहां तक आपका सवाल है कि मार्केट में निवेश करने के लिए समय सही है या नहीं, अगर आप एक लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो जब मार्केट डाउन जाती है तो कुछ क्वालिटी स्टॉक्स अच्छे वैल्यू पे मिल जाते हैं, उस समय आप निवेश कर सकते हैं और लंबे समय के लिए रुक सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म गेन देख रहे हैं इस समय पर, तो ये शायद सही समय नहीं होगा। शॉर्ट टर्म गेन से रेफरेंस है इंट्राडे भी, और एक छोटा समय 2 दिन से लेकर के 1 महीना से लेकर 3 महीने तक। Well, our next caller is Sanjay from Gurugram. Sanjay, welcome to the show. सवाल पूछिए। हेलो जी। हाँ, सवाल पूछिए संजय जी। यामिनी जी, गुड इवनिंग। मेरा सवाल है GSEC में रिटेल इन्वेस्टमेंट के लिए कब मौका लगेगा? लाइक रिटेल इन्वेस्टर कब GSEC में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर पाएगा? जी, तो ऑलरेडी ये आ चुका है कि GSEC को रिटेल इन्वेस्टमेंट के लिए खोला जाएगा और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अब उनमें निवेश कर पाएंगे। अभी प्रोसीजर प्रॉपर्ली लेड नहीं है, पर वो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। दिल्ली से हमारे साथ श्रोता हैं समर जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये था सर, जैसे मेटल इंडस्ट्री के बारे में सर। जी। तो सर स्क्रैप के रेट मैं ये जानना चाहता हूँ, इसमें जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी है ये स्क्रैप पॉलिसी, जी, उस पे सर आगे मार्केट प्लस जाएगी, इसकी डिमांड वगैरह बढ़ेगी या कुछ और डाउन जाएगी? सर इसके बारे में मुझे बताएंगे सर कुछ खुल के प्लीज। जी, ये स्क्रैपेज पॉलिसी में ऑटोमोबाइल्स की डिमांड की बात कर रहे हैं? जी यामिनी जी, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेके स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा हुई है, उससे किस तरह का बदलाव आएगा मेटल सेक्टर पर, ये समझना चाह रहे हैं। जी, मेटल सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है और इसमें ओवरऑल निवेश जो है हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सत्रों में काफी अच्छा रहा है और ये काफी अच्छा रिटर्न भी दे रहा है। स्क्रैपेज पॉलिसी से आने से ऑटोमोबाइल सेक्टर और जो मेटल्स उससे कनेक्टेड हैं उन सभी में एक खासा असर नजर आएगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स डिमांड बढ़ जाती है स्क्रैपेज पॉलिसी के आते ही। जैसे हमने बजट के बाद ऑटोमोबाइल्स शेयर्स में भी देखा था कि एक बढ़त थी। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 7 अप्रैल तक चलने वाली द्विमासिक समीक्षा बैठक आज शुरू हो गई। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास बुधवार को बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देंगे। समिति देश में आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के साथ ही ब्याज दरों पर भी फैसला करेगी। गौरतलब है कि पिछली बैठक में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया था। यामिनी जी, क्या आसार लग रहे हैं वर्तमान हालात को देखते हुए? किस तरह की जो नीतिगत दरें हैं उनको लेकर कैसा
कैसी संभावना आप देख रही हैं? जी, वर्तमान स्थिति में माना जा रहा है कि इकोनॉमी रिकवरी फेज पर है और उसको सपोर्ट करने के लिए जो है आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को लो लेवल पे ही रखेगी। कट्स नहीं नजर आएंगे, पर एक अकोमोडेटिव स्टांस जिसे कहते हैं वो मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से मार्केट में तरलता रहेगी और कोशिश यही की जाएगी कि इकोनॉमिक रिकवरी के लिए जितनी मॉनेटरी सपोर्ट दी जा सके वो सपोर्ट ऑफर की जाए। कोशिश ये भी की जाएगी कि साथ के साथ इन्फ्लेशन को 2 से 6% के टारगेट के आसपास रखा जाए, ताकि लोगों पर उसका खासा बोझ ना पड़े और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो इकोनॉमी की रिकवरी के दौरान अच्छी रहे। Our next caller is Lakshmi Chand from Delhi. लक्ष्मी जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए अपना लक्ष्मी जी, स्वागत है। हाँ जी सर, मेरे 2 सवाल हैं। जैसे ये कंपनी हमें एम्प्लॉइज कोटे से शेयर अलॉट करती है, तो उस समय वो जो इश्यू प्राइस है और जो मार्केट रेट का प्राइस होता है उसमें जो डिफरेंस होता है उसका परसेंट वैल्यू में हमारी सैलरी में ऐड कर देती है, बाद में फिर वो टैक्स कटता है। और जब हम इसको सेल कर दिया हमने, तो हमें उसको कैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जैसे डिविडेंड में 7.5% हमारा टैक्स कटा है, तो वो क्या हमारी सैलरी के स्लैब के हिसाब से उसमें टैक्स कटेगा, अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो? ये 2 सवाल है सर। ये आपका पहला सवाल, जब कंपनी इशू करती है तो वो जिस इशू प्राइस पे आपको करती है, उस इशू प्राइस में अगर बढ़ोतरी होती है लिस्टिंग के टाइम, वो आप इनकैश कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे बेच करके। अगर पीरियड इशू प्राइस और लिस्टिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, 1 साल से कम होता है, तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कहेंगे अगर आप उसे बेच देते हैं। जब आप लंबे समय के लिए रखते हैं तो 12 महीने से ऊपर, तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में माना जाएगा और आप फिर उसको अपनी पहले जो है उसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे करेंगे। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। देश में वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 10 महीनों में कुल 72 अरब 12 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। विदेशी निवेश में इस दौरान वर्ष 2019-20 की तुलना में 15% से अधिक की वृद्धि हुई। देश में किसी भी वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में इस बार का जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है वह सर्वाधिक है। गौरतलब है कि सरकार की ओर से एफडीआई नीति में सुधार, निवेश सुविधा तथा कारोबार करने की प्रक्रिया आसान किए जाने जैसे विभिन्न उपायों से एफडीआई आवक में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 10 महीनों में एफडीआई प्रतिभूति आवक में पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 28% की वृद्धि हुई। देश में हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 30.28% योगदान के साथ सिंगापुर निवेशकर्ता देशों में सबसे अव्वल रहा। इसके बाद अमेरिका और संयुक्त अरब अमारात का स्थान रहा। एफडीआई प्रतिभूति आवक की दृष्टि से 29.09% योगदान के साथ जापान सबसे ऊपर रहा। इसके बाद सिंगापुर तथा अमेरिका का स्थान रहा। वर्ष 2020-21 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र सबसे अधिक पसंदीदा बनकर उभरे हैं। Well, today is the 5th anniversary of the flagship program Stand Up India. More than 25,586 crore rupees were sanctioned to over 1,14,322 accounts by the banks under the Stand Up India scheme in 5 years. Stand Up India scheme was launched on the 5th of April 2016 to promote entrepreneurship at grassroots level, focusing on economic empowerment and job creation. The scheme has been extended up to the year 2025. The objective of the Stand Up India is to promote entrepreneurship amongst women, scheduled caste and scheduled tribe categories to help them in starting a greenfield enterprise in trading, manufacturing and services sector. The scheme facilitates bank loans between 10 lakh rupees to 1 crore rupees to at least one scheduled caste or scheduled tribe borrower and at least one woman borrower per bank branch of the scheduled commercial banks. आइए आमंत्रित करें अपने अगले श्रोता को। आप हैं गाजियाबाद से गौरव जी। गौरव जी, बहुत बहुत कार्यक्रम में आपका स्वागत। सवाल पूछें। आप जुड़ चुके हैं गौरव जी, अपना सवाल पूछिए। जी, ये एफआईआई और डीआईआई का इन्फ्लुएंस अभी कितना है परसेंटेज वाइज? इज डीआईआई मोर इन्फ्लुएंशियल और एफआईआई मोर इन्फ्लुएंशियल? एंड how long will it take US money which has been released for a package to come to flow into developing markets India? Well, FIIs are the foreign institutional investors which we are talking about, and the DIIs are the domestic institutional investors, and both of them play a very important role in the overall markets. We have seen that the markets are rising primarily
in the past so many months, primarily because of the FII investment and the confidence of the DIIs as well. Overall, both of them are important for the economy, but we do see that when FIIs have a more movement, the markets tend to push up much higher than the movement of the DIIs. आइए चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां कुल मिलाकर आज तेजी देखने को मिली है। अमेरिका में पिछले कारोबारी सत्र में प्रमुख सूचकांक अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचने का अनुकूल असर आज एशियाई बाजारों में दिखा। जापान का निक्की 225 सूचकांक 0.8% लाभ के साथ बंद हुआ। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.9% की वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.3% ऊपर आ गया। चीन और हांगकांग के शेयर बाजार गुड फ्राइडे अवकाश के कारण बंद रहे। यूरोपीय शेयर बाजारों में भी त्योहारी छुट्टियां चल रही हैं, इसी कारण वहां शेयर बाजार बंद रहे हैं। Moving on to oil, the oil prices today fell more than 2.5% amid rising supply from the OPEC plus countries. Higher Iranian output also impacted the crude prices. And the intra-day trade, the Brent was trading around $63.30 per barrel, while the WTI crude prices were around $60.10 per barrel. Well, Yamini, talking of oil, the OPEC plus countries' decision for easing of production cuts fueled by demand-led recovery. But isn't it a paradoxical situation that while Europe and other emerging markets are yet again headed for a potential lockdown, in fact, some of them are already in the lockdown, which might see a downside in the demand? Well, yes, because of the rising cases and COVID, there has been an effect which can be seen in Europe and other countries, which is likely to have an effect on the demand. At the same time, that will lead to lower prices and a cut in the production, which the OPEC has been trying to maintain so that the price levels can be maintained at a higher level and do not slip down to the lowest levels which they had slipped down when the lockdowns were at their peak and the COVID cases were being heard of. So we do see that, the situation does cause a little bit worry on the overall economic recoveries of these countries as well as for our own country. But because since mass vaccination is again going on, there is a positive trend. We don't see that the previous circumstance of a lowest oil prices would reach, primarily because many economies are in the recovery phase. अगले यदि वर्तमान हालत को देखते हुए उम्मीद करें अगले कह लें 2-3 महीनों का, तो उसमें तेल के दाम कहां जाते दिख रहे हैं? बहुत संक्षेप में। जी, मुझे लगता है कि तेल के दाम स्टेबल रहेंगे और लोअर लेवल्स पे ही रहेंगे अभी, जब तक पूरी तरीके से रिकवरी नहीं होती। आइए आगे बढ़ें, चलें सर्राफा बाजार की ओर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोने और चांदी की चमक फीकी रही। अप्रैल महीने में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 90 रुपए घटा 44,330 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। मई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 50 रुपए कम होकर 65,040 रुपए प्रति किलो रह गई। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य $1,725.40 प्रति आउंस पर पहुंच गया। चांदी $24.80 प्रति आउंस के स्तर पर रही। यहां सोने की दशा और दिशा दोनों पर बहुत संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। सोना किस दिशा में जाता दिख रहा? जी, सोना ज्यादातर स्टेबलाइज होने की दिशा में है। बहुत लो नहीं जाएगा, पर प्राइसेस जो बहुत हाई चली गई थी कोविड की वजह से, वो अब स्टेबलाइज करेंगी। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से यामिनी जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines once again. Sensex and the Nifty slipped more than 1.5% amid profit booking and resurgence of COVID-19 cases in the country. RBI's bi-monthly monetary policy review begins today, and oil prices fall more than 2.5% amid rising supply from the OPEC plus countries. And that's it in this edition of Market Mantra. I'm Nishit Kumar, along with me, Manoj Pathak, saying goodbye till we meet again the next time.